Healthy morning, students. Let us solve question 18 from chapter 15 probability. The question is, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square, a number divisible by 5. First of all, we'll write the formula of probability, which is number of trial upon total number of trial. Here we'll decide total number of trial. See, this total trial is always given in the question. Check it out. This experiment we are doing from how many numbers? See, this box contains 90 discs. From 90 discs, we have to select one disc. So we are selecting this disc from how many discs? 90. So this 90 will be our total trials. Now first thing we want, that disc bears a 2-digit number. We know very well that we are writing statement from the question. Okay, whatever sentence given after the probability, it is our statement. It bears a 2-digit number, but we cannot write it here. It stands for disc. So event A will be disc bears a 2-digit number. See, on the disc they are numbered from 190. Now you have to find out how many numbers are there from 1 to 90 which are 2-digit numbers. तो सिंपल लॉजिक है. सी 1 to 9 तक के नंबर है वही 1 डिजिट है, फिर 10 से लेके 90 तक वो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स है. तो मतलब 90 नंबर में से मैं वो 9 नंबर माइनस कर डालू. कौन से 9 नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 2 डिजिट नहीं है. तो ये 9 नंबर 1 to 9 को छोड़ के सारे के सारे नंबर 2 डिजिट नंबर है. तो मतलब 90 में से 1 डिजिट नंबर माइनस कर डालो तो हमें मिलेंगे 2 डिजिट नंबर. दैट मीन्स टोटल 81. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ ट्रायल will be 2-digit numbers which are 81 upon total number of trial, that means 90 discs. So 81 upon 90. Now 81 90 both are divisible by 9. 9 9s are 81, 9 10s are 90. So you can write either 9 by 10 or 0.9, which is our answer. Now second thing we want, perfect square number. Perfect square number. So now our statement will be, it bears, it that means disc. Disc bears a perfect square number. See, disc bear a perfect square number. Let me explain meaning of perfect square. Perfect square are those numbers which are square of some numbers. इन शॉर्ट आपको सिर्फ स्क्वायर लिखने हैं. चलो लिखना चालू करते हैं, लेकिन याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 to 90 के बीच के ही होने चाहिए. तो फर्स्ट 1 पहला स्क्वायर, सेकंड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81. 10 का स्क्वायर में 100 नहीं लिख सकता क्योंकि वो 90 से बड़ा हो जाएगा. सो दीज आर द स्क्वायर्स विच आर लाइंग बिटवीन 1 to 90. सो काउंट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो हियर परफेक्ट स्क्वायर आर 9. लेट अस सॉल्व. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, नंबर ऑफ ट्रायल विल बी perfect square which are 9. So upon total number of trial, that means 90. So both are divisible by again 9. 9 1s are upon 9 10s are 90. So 1 by 10 can be written as 0.1. See, it is not necessary to convert into decimal fraction. Okay, if you leave answer as fraction, it will do.
no need to convert into decimal fraction. See, third thing we want a number divisible by 5. उसका मतलब 5 के टेबल में जितने 1 to 90 के बीच के नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे हमें लेने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का टेबल बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं 5 का टेबल बोलना। अगर हम स्टार्ट करें 5 1 जा 5 वो आता है, 5 2 जा 10 वो भी 1 to 90 के बीच में आता है, 5 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। याद रखना टेबल 10 तक ओवर नहीं होता है, वो आगे भी होता है। तो आगे बढ़ाओ 5 का टेबल। 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, 5 13 जा 65, 5 14 जा 70, 5 15 जा 75। ठीक है, 5 17 जा 85, 5 18 जा 90, 5 19 जा 95। अब 5 90 जा 90 से बड़ा हो गया, तो मतलब हम 5 का टेबल कहां से कहां तक ले सकते हैं, 5 1 जा 5 से लेके 5 18 जा 90 तक। तो कितने नंबर 5 के टेबल में है, देखो 5 1 जा 5 काउंट करते जाओ, 5 10 15, ठीक है 20 25, काउंट करते जाओ मेरे साथ, फिर से काउंट करते जाना फिंगर में, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। काउंट करो कितने नंबर्स हुए, 18। सो टोटल 18 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 के टेबल में आते हैं और 1 और 90 के बीच में है। तो मतलब आप ऐसे भी ये आइडिया लगा सकते हो, 5 1 जा 5 2, 5 18 जा 90, मतलब टोटल कितने नंबर्स आए 5 से डिविजिबल 18। ओके, यहाँ लिखा हुआ है। लेट अस सॉल्व प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। Number of trial that means number divisible by 5, which are how many, 18. Now total number of trial is 90. Say again, both are divisible by 2, 9 2 जा 18 and 9 10 जा 90. Further if I divide 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 0.2। से फ्रॉम 2/10 ऑल्सो डायरेक्टली यू कैन राइट 0.2, और अगर आप 1/5 आंसर एज इट इज रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो हियर क्वेश्चन 18 इज सॉल्व्ड। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। रीड द क्वेश्चन। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letter as given below, A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? See, question is like this. You know very well what exactly the dice is. Generally, there are 6 number on the dice. Okay? That means dice have 6 faces. But here whatever dice we are having, on that dice alphabet is written, यानी डाइस के एक साइड पे ए लिखा है, दूसरी साइड पे बी लिखा है, तीसरी पे सी, चौथी पे डी, पांचवी साइड पे ई और छठी साइड पे ए। उसका मतलब ए 2 बार आया, मतलब डाइस पे 2 साइड ए लिखा हुआ है और बाकी सारी साइड पे बी सी डी ई। लेट अस सॉल्व द सम। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल ट्रायल हम वो लेते हैं कि जिसमें से हम सिलेक्शन करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग डाइस एंड डाइस हैविंग हाउ मेनी फेसेस, 6। तो 6 फेसेस से हमें सिलेक्शन करना है, सो इट विल बी 6। नाउ व्हाट यू वांट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। सो द स्टेटमेंट विल बी गेटिंग ए ऑन डाइस। सो नंबर ऑफ ट्रायल, अब हमें मालूम है कि डाइस पे 6 साइड पे ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि डाइस पे कितनी साइड पे ए लिखा हुआ है, 1 और 2। 2 साइड पे ए लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ ट्रायल विल बी 2 अपॉन टोटल ट्रायल दैट इज 6। सो नाउ 2 1 जा and 2 3 जा 6, which is our answer. Okay, next we want getting D on the dice, getting D on a
dice. Check it out. On how many sides D is written? यहाँ D one time है, so only on the one side D is written. Number of trial will be 1. Total number of trial we have 6. So it is our answer because we cannot reduce further. 1 by 6. Go through it. Let us move to question number 20. See, this question was asked 1 year before in board exam. Let us read the question. Suppose you drop a die at random on the rectangular region. Say okay. Let us read the question once again. Suppose you drop a die at random on rectangular region shown in the figure given on the next page. Next page मतलब हमें next page पे नहीं जाना, वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? Okay. Let me explain this question. अब हमें क्या करना है, एक पेपर है जिसके ऊपर रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया हुआ है और सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें डाइस को डालना है, डाई डालना है. ठीक है, डाइस हमें आपको मालूम है क्या होता है. तो वो डाई ये सर्कल में आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. ओके, अब देखो आपको ये डिसाइड करना है या नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द स्टेटमेंट इवेंट ए आफ्टर प्रोबेबिलिटी. जनरली वी यूज टू राइट द स्टेटमेंट ईट. यहाँ ईट किसके लिए यूज हुआ है, डाई के लिए. ओके, सो डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर. सो स्टेटमेंट विल बी अ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल. लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, टोटल ट्रायल लिखते हैं. अब देखो एक सिंपल लॉजिक में आपको बताता हूं. क्वेश्चन क्या है कि हमें डाई एक पेपर के ऊपर बड़ा सा रेक्टेंगल है और वो स्क्वायर है. अब मैं डाई को डालूंगा तो वो रेक्टेंगल पे भी जा सकता है, स्क्वायर पे भी जा सकता है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी स्क्वायर पे जाने की फाइंड करनी है. तो पहले टोटल ट्रायल में क्या लिखा था, टोटल सारी पॉसिबिलिटी लिखी जाती है कि जहां जहां डाई जा सकता है. अब मुझे बताओ, ये फिगर आपको जी दिख रही है, वहां डाई कहां जा सकता है. आप बोलोगे सर सर्कल में भी जा सकता है, रेक्टेंगल में भी जा सकता है. तो मुझे अगर सारा एरिया फाइंड करना हो कि जिसमें डाई जा सकता है, तो आपको क्या लगता है, मुझे सर्कल और रेक्टेंगल दोनों के एरिया को ऐड करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल के एरिया को ही सिर्फ लेना पड़ेगा. करेक्ट, सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया ही मैं लूंगा क्योंकि सर्कल का खुद का एरिया तो रेक्टेंगल में आ चुका है. तो मतलब मैं अगर डाइस डालता हूं तो वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही जा सकता है. ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी है, यानी इससे अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल बी अवर टोटल ट्रायल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, वी नो द फॉर्मूला. ये लेंथ इज 3 मीटर एंड ब्रेथ इज 2 मीटर, सो 3 2 6 मीटर स्क्वायर. दैट विल बी अवर टोटल ट्रायल. नाउ फेवरेबल और नंबर ऑफ ट्रायल. अब नंबर ऑफ ट्रायल में हम वो फाइंड करते हैं कि जहां पर हमें इवेंट करनी है. अब बताओ कि मुझे डाइस कहां डालना है. मुझे डालना है डाइस सिर्फ सर्कल के अंदर. वो मेरा होगा नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब एरिया ऑफ सर्कल. यू नो द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. हियर वी आर हैविंग diameter of the circle. So diameter will be, diameter is 1 meter. So radius, we know the formula of radius, diameter divided by 2, it will be 1 by 2 meter. Okay, so area of the circle according to pi r square. Pi, see in maths, until unless it is not given the value of pi,
So no need to substitute. Keep pi as it is. So pi as it is, r square, that means radius 2 times 1 by 2 into 1 by 2. Multiply numerators, pi into 1 pi upon 2 2s are 4. Okay. Now probability of event B. Number of trial will be this pi by 4. Pi upon 4 upon total number of trials that we have find it out, 6. It will be 6. Okay. Say here 4 is the denominator of pi and 6 is the denominator of whole fraction. So 4 and 6, check it out, 4 and 6 both are denominators. So let us write this both denominator together. So it will be pi upon 4 into 6. So it will be pi upon 24. 6 4s are 24. So this will be your answer. But suppose in exam, if value of pi is given, that what we'll do? We'll substitute value of pi. Let us substitute. So instead of pi, we'll write 22 by 7. Okay, 22 by 7. Now check it out. by 7 and denominator 24 as it is. Okay. Now solve this. Again same way. 7 and 24 both are the denominators. So they will be written together. 22 upon 7 into 24. Okay, so we can reduce this. So this 22 and 24 can be reduced. 2 11s are 22 and 7 into 12. Okay, 2 11s are 22 and 2 12s are 24. So our final answer will be 11 upon 12 sevens are 84. This will be our final answer. Okay, let me explain once again. क्वेश्चन क्या है समझो फिर से. रेक्टेंगल और स्क्वायर है, तो अब हम डाइस डाल रहे हैं, तो हमें स्क्वायर में डाइस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो पहले हमें टोटल ट्रायल लिखना पड़ेगा. टोटल ट्रायल में हम वो लेते हैं जिसमें सारी पॉसिबिलिटी आ जाए. तो सिंपल लॉजिक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने डाइस डाला तो कितनी कितनी जगह पे जा सकता है. सिंपल लॉजिक है. ये रेक्टेंगल एरिया के बाहर डाइस नहीं जा सकता. ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया के अंदर ही वो डाइस रहेगा. सो टोटल ट्रायल विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब इवेंट ए में क्या किया जाता है कि जिसकी एग्जैक्टली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. वी वांट प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड इनसाइड द सर्कल. ठीक है, सो हियर विल टेक एरिया ऑफ सर्कल. इट इज पाई आर स्क्वायर, radius 1 by 2, so it will be pi by 4. Now probability of event B, so number of trial will be area of circle which is pi by 4 upon total number of trial area of rectangle 6. दोनों डिनोमीटर को साथ मिला दो, pi into 20, pi upon 24. Now if value of pi 22 by 7 given, then substitute 22 by 7. Again 7 and 24 will be together. If you reduce 22 and 24, 2 11s are 22, 2 12s are 24. It will be 11 by 84, which is our final answer. Okay, go through the sum. Let us move to next one. Question number 21.
Read the question. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is a good, but will not buy if it is a defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? So first of all we'll write formula, number of trial upon total number of trial. So your total trial will be total ball pens. Check it out. How many ball pen we have? 144. And out of these 144, 20 are defective and rest of are good. So now tell me, out of 144, 20 are defective pens. So how many will be good one? Good one will be 144 minus 20, that is 124. Okay. Now let us understand the question. अब क्या है कि total 144 ball pens are there, out of which 20 are defective and others are good. Now Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. अब होता क्या है कि पूरा एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन्स है और 20 डिफेक्टिव और बाकी की अच्छी है 124. अब शॉपकीपर है, ठीक, ये सारे लॉट में से एक पेन उठाता है. ठीक है, अब एक सिंपल लॉजिक है, उसने एक पेन उठाई तो अच्छी वाली पेन भी हो सकती है और डिफेक्टिव पेन भी हो सकती है. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर अच्छी वाली निकली तो नूरी उसको परचेस कर लेगी, अगर डिफेक्टिव निकली तो परचेस नहीं करेगी. ऑब्वियस है. तो फर्स्ट व्हाट यू वांट, इवेंट ए, आफ्टर प्रोबेबिलिटी विल राइट द स्टेटमेंट. शी मतलब कौन है, हमें यहां पर शी नहीं लिख सकते, उसका नेम लिखना पड़ेगा. शी इज नूरी. नूरी विल बाय इट. इट का मतलब बॉल पेन. नूरी विल बाय अ बॉल पेन. अब बताओ मुझे कि नूरी बॉल पेन कब परचेस करेगी. सिंपल लॉजिक यहां लिखा हुआ है कि अगर वो बॉल पेन अच्छी हुई तो इवेंट ए मतलब कौन सी है. इवेंट ए वो बॉल पेन है जो कैसी है, अच्छी वाली है. यानी कितनी अच्छी बॉल पेन है, 124. सी वंस अगेन व्हाट प्रोबेबिलिटी वी वांट कि नूरी विल बाय अ बॉल पेन. अब नूरी बॉल पेन कब परचेस कर सकती है, जब वो बॉल पेन अच्छी वाली है तब. तो इवेंट ए होगी गुड बॉल पेन्स विच इज 124. So let us write probability of event B. Sorry, A. Number of trial 124 अच्छी वाली बॉल पेन, and upon total number of trial will be 144 total ball pen जिसमें से शॉपकीपर ने बॉल पेन सिलेक्ट की है. Both are reducible by 4. 432 जा 124 and 436 जा 144. Again can be reduced by 4. 8 जा 32, 9 जा 36, which is our answer. Second what we want, she will not buy it. That means Noori will not buy a ball pen. अब नूरी बॉल पेन कब परचेस नहीं करेगी, वो डिफेक्टिव है तो. सो टोटल हाउ मेनी डिफेक्टिव बॉल पेन्स आर देयर, 20. तो इवेंट बी क्या होगी, 20. Let us solve this. Probability of event B, number of trial will be defective ball pens which is 20 upon total number of trials. Total number of trial will be total ball pen 144. Okay, let us solve. Again it can be reduced by 4. 4 5 are 20 and 436 are 144, which is our answer, 5 upon 36. Okay, go through it.